Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where this is going to be your part 2 of the Theory of Supply series for ISC class 12. If you haven't watched my first video of supply, then I'm going to leave the link in my description below. Kindly go first, check out that first video, and then come back to this part 2. From this part, we are going to start with the supply function, and probably in this video itself हम लोग complete कर देंगे supply को, and for the next video we are going to take up the elasticity of supply वाला part. ठीक है, so 3 पार्ट में लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका with supply function. नाउ जब डिमांड पढ़ रहे थे उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है. Any function mathematically is to express the relationship, functional relationship between x and y वेरिएबल. ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो एक फंक्शन से डिनोट होता है. सो डिमांड फंक्शन में हमने किया था दैट डिमांड फंक्शन एक्सप्रेसेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग इट. यहां पे भी सप्लाई फंक्शन में भी इट इज गोइंग टू बी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन quantity supplied for a commodity along with its determinants, the factors which are affecting the supply. So इसीलिए आप देखिए क्या लिखा हुआ है, supply function represents the functional relationship. Your keyword has to be functional relationship. जब भी कोई function पूछेगा उसका keyword हमेशा functional relationship बनेगा. Since हम लोग supply के बारे में पढ़ रहे, so it is a functional relationship between quantity supplied and its various determinants and the factors which are affecting the supply for a commodity. Supply function can be expressed as Sx is equal to function of आप Px लिख सकते हो, related good के लिए dot dot P1 dot dot n minus 1 लिख सकते हो, आप टेक्नोलॉजी के लिए T लिख सकते हो and so on. ठीक है, so इसीलिए Pn P1 n minus 1 is your price of related good, n is your natural factor, T is your technology, E is your expectation, H is your transport and communication, G is your government policy and so on. बट इंश्योर करिएगा कि आप जो भी फंक्शन में जितने भी डिटर्मिनेंट डाल रहे हैं उसको प्लीज नीचे ऐसे एक्सप्रेस कर दीजिएगा. ठीक है, एक्सप्रेस इट नीचे के एक एक फंक्शन वो क्या बताना चाह रहा है. Got it? I hope that is clear. And now if you are wondering where you should get these notes from, for getting hold of these notes, you need to download my app, which is Aryan Tutorial for Android users. Over there, this entire notes has been put out as a course for मिनिमम प्राइस ऑफ 249 रुपीज, जिसमें पूरा चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 11 तक आपका एंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स का नोट्स को मैंने डाल दिया है. प्लीज इसका इस्तेमाल करिए. दिस इज गोइंग टू कम वेरी हैंडी. आपको अपना टेक्स्ट बुक का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा. आप यहां से पढ़िए, आंसर लिख के आइए. यू विल गेट दैट परफेक्ट मार्क्स जो आपके टीचर खोज रहे होंगे आंसर्स में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. सप्लाई फंक्शन तो हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डू द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ डिमांड डिमांड हमने किया था, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी होगा. लॉ ऑफ डिमांड था दैट with the higher price consumer tend to purchase lesser quantity of commodity owing to the purchasing power that gets affected. So higher price, lower purchasing power, therefore lesser demand. Supply के केस में, as I said in my first video, that price is associated with profit margin. So higher is the price, higher will be the profit margin, and therefore larger will be your quantity supplied. Lower is the price, lower will be the profit margin, and lesser will be the quantity supplied. But remember कि चाहे लॉ ऑफ डिमांड हो या लॉ ऑफ सप्लाई हो, बिना अजम्पशन के नहीं बन सकता है. सो प्राइस का एसोसिएशन चाहे डिमांड या सप्लाई हो वो तभी पॉसिबल है when we are assuming that all other factors which are affecting the demand and supply, they are assumed to be constant. So इसीलिए यहां पे भी ceteris paribus order आएगा, which implies that assuming other factors remaining constant, then we can say that there is going to be a direct or a positive correlationship between price and quantity supplied. That with the higher price, larger supply, lower price, lower supply. I hope that is clear. So देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए क्या दिया है. That other things remaining constant, the quantity supplied for a good increases when the price increases. Quantity supplied increases when the price increases and decreases when the price decreases. So there is a direct or a positive correlationship between
price and quantity supplied for a commodity. Why does this happen? We are going to discuss it in detail in the later part, but यहाँ पे one factor is profit. With the higher price, producers tend to get a larger amount of profit and therefore they are willing to offer a larger quantity. ठीक है. दूसरा is cost of production. इसका एसोसिएशन आपको चैप्टर 8 में देखने मिलेगा. So the day we are going to finish our chapter 8, that is cost, theory of cost को complete करेंगे, cost and revenue analysis वाला चैप्टर में, वहां पे जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा उसको कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. एंड तीसरा रिसोर्स एलोकेशन, यानी जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है, प्रोड्यूसर्स अपने रिसोर्सेस को विड्रॉ करके फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ है वहां पे रिसोर्सेस को एलोकेट करके उस प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देंगे. कहने का मतलब है आप ले लीजिए लैंड पे आप व्हीट उगा सकते हो, राइस उगा सकते हो, एंड इफ राइस इज deriving a higher prices in the market, like rice is being sold for a higher prices, so those producers, those farmers who are producing wheat, they are going to stop the production of wheat and divert that land towards the production of rice, which is more profitable. ठीक है. I hope that is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं. सप्लाई स्केड्यूल, जैसे डिमांड स्केड्यूल था वैसे ही सप्लाई स्केड्यूल भी आपका आएगा. डिमांड स्केड्यूल लॉ ऑफ डिमांड को टैब्यूलर फॉर्म में बताता था, वैसे ही सप्लाई स्केड्यूल इज गोइंग टू टेल यू द लॉ ऑफ सप्लाई इन द टैब्यूलर फॉर्म. सो कीवर्ड होगा आपका टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन. इट इज अ टेबल. सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबल, या आप इसको कीवर्ड के फॉर्म में टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो. ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है. टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जहां पे सप्लाई स्केड्यूल को भी आप एक फर्म के लिए दिखा सकते हो. सो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, या तो पूरे एंटायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए, ग्रुप ऑफ कंपीटिंग फर्म्स के लिए दिखा सकते हो. दैट इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. तो आइए कैसा बनेगा, आप कैसे बना सकते हो अपना सप्लाई स्केड्यूल को. लेट्स डू इट. इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, आप प्राइस ले लो. सपोजिटली योर प्राइस इज 10, 20 and 30, एंड क्वांटिटी सप्लाइड आप ले लो, इट इज 1, 2 and 3. प्लीज याद रखिएगा दैट एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस योर सप्लाई इज टू इंक्रीज. ठीक है. बोल के 1, 2, 3, 10, 20, 30 लिया है डायरेक्ट रिलेशनशिप बताते हुए. अब ये मैंने एक फर्म के लिए, एक इंडिविजुअल सप्लायर के लिए बनाया, तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. सिमिलरली फॉर मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, market supply schedule, we are going to make it for a group of competing firms. यानी कि कुछ ऐसा, प्राइस ले लीजिए आप 10, 20, 30, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर फर्म ए आप मान लीजिए 1, 2 and 3, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर फर्म बी आप ले लीजिए 2, 3, 4, एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर फर्म सी ले लीजिए 3, 4 and 5. तो ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपीटिंग फर्म्स के लिए हम लोग दिखा रहे हैं, तो ये मार्केट सप्लाई बन जाएगा. अब मार्केट सप्लाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे फर्म्स के सप्लाई को हमें एड अप कर देना पड़ेगा. आई होप यू रिमेंबर द कीवर्ड के मार्केट डिमांड जब हम लोग कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, हाउ इज मार्केट डिमांड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन. वैसे ही मार्केट सप्लाई इज आल्सो टू बी डिराइव्ड बाय इंडिविजुअल सप्लाई बाय हॉरिजॉन्टली समिंग अप द सप्लाई. So this is horizontal direction, and इसमें हम लोग ऐड करते जा रहे हैं ताकि हमें मार्केट सप्लाई मिल जाए. So it will be 3 plus 2 plus 1 which is 6, 4, 3, 2 that is 9, and 5, 4, 3 that is 12. तो ये हो गया आपका मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई कैसे निकलेगा, बाय हॉरिजॉन्टल समेशन. किसका, ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. So horizontally summing up the individual supply, we are going to derive our market supply. I hope that is clear. Now, इसी individual supply schedule and market supply schedule को अगर आप graphically plot कर दो,
That means if you graphically represent them, it will give you your supply curve. So यहां मैं लिख देता हूं ISC, that is individual supply curve, not your board examination का नाम, but individual supply curve. So हम लोग इसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पे. Y axis origin, X axis quantity, प्राइस. प्राइस आप ले लीजिए, मैंने लिया है 10, 20, 30. क्वांटिटी इज 1, 2 एंड 3. सो व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 1 यूनिट, तो यहां आएगा पहला लोकस. व्हेन द प्राइस इज 20, क्वांटिटी इज 2 यूनिट, तो यहां आएगा आपका सेकंड लोकस. एंड व्हेन द प्राइस इज 30, क्वांटिटी इज 3 यूनिट, तो यहां आएगा आपका थर्ड लोकस. इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर द इंडिविजुअल फर्म. वहीं टॉकिंग अबाउट मार्केट सप्लाई कर्व को अगर हमें बनाना हो तो आइए इसके लिए भी ग्राफ बना लेते हैं. Y axis origin, X axis. Please remember that you have to label your diagram. If you forget the labeling, your marks will be deducted. नंबर कम हो जाएगा. ठीक है. So I'll take my price as 10, 20, 30, then 12 तक जा रहा है. So let's take it 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12. आइए इसको प्लॉट करते हैं. क्या बनेगा? फॉर इंडिविजुअल, फॉर फर्म ए इट वाज व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 1 यूनिट, तो यहां कहीं पे आ जाएगा 1 यूनिट. व्हेन द प्राइस इज 20, क्वांटिटी इज 2 यूनिट, तो यहां कहीं पे आ जाएगा आपका 2 यूनिट. एंड व्हेन द प्राइस इज 30, क्वांटिटी इज 3 यूनिट, सो 3 यूनिट यहां कहीं पे आ जाएगा. सो ये बन गया आपका सप्लाई कर्व फॉर ए, फर्म ए. उसके बाद फर्म बी के लिए इट इज व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 2 यूनिट. व्हेन द प्राइस इज 20, क्वांटिटी इज 3 यूनिट. एंड व्हेन द प्राइस इज 30, क्वांटिटी इज 4 यूनिट. तो ये बन गया आपका 4 यूनिट. ये बन गया आपका सप्लाई कर्व फॉर बी. And for C, it will be when the price is 30, quantity is 3 units. When the price is 20, quantity is 4 unit. And when the price is 30, quantity is 5 unit. तो ये बन गया आपका सप्लाई कर्व फॉर C. And market supply हो जाएगा when the price is 10, market supply is 6 units. When the price is 20, market supply is 9 unit. So 9 आ जाएगा इधर, 8 और 10 के बीच में 9 unit. And when the price is 30, quantity is going to be your 12 unit. ठीक है, सो इसको ज्वाइन कर देंगे. ये बन गया आपका मार्केट सप्लाई. आई होप दैट इज क्लियर. सो अगेन आई वुड से दैट मार्केट सप्लाई इज डिराइव्ड बाय horizontal summation of all the individual supply curve. कि horizontally जब हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तब हमें हमारा मार्केट सप्लाई मिल जा रहा है. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. सप्लाई स्केड्यूल हमने कर लिया, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल कर लिया, साथ ही साथ उसका कर्व भी देख लिया. मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कर लिया एंड साथ ही साथ उसका भी कर्व हमने देख लिया क्या होता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. कि आखिरकार प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप या डायरेक्ट कोरिलेशन क्यों है. सो उसका रीजन है सबसे पहला तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इज एसोसिएटेड विद प्रॉफिट. ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज एसोसिएटेड विद प्रॉफिट मार्जिन. So as I said, higher is the price, higher will be the profit margin. So therefore, a higher quantity will the producers be willing to produce and offer for sale in the market. Lower is the price, lower will be the profit margin, and lesser quantity will the producers be willing to produce and offer for sale into the market. So price is directly associated with profit margin बोल के आपका law of supply operate करता है.
हायर प्राइस पे हायर क्वांटिटी सप्लाई दिया जाता है। नाउ ये वाला जो पॉइंट है, आई एम गोइंग टू डेफर इट टू चैप्टर 8। मैं अभी आपको ये नहीं बताना चाहूंगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जब तक आपको मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है एंड उसका बिहेवियर क्या होता है वो कंप्लीटली समझ में ना आ जाए चैप्टर 8 का, तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे। सो अभी के लिए इस पॉइंट को होल्ड पे रखो, जब चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट सीख लेंगे, तब आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू बैक अगेन टू चैप्टर 5 टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट। तो अभी के लिए इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए एंड डायरेक्टली आ जाइए पॉइंट नंबर सी पे, विच इज इजी, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इंप्लाई करता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, नए फर्म्स, न्यू फर्म्स, दे गेट अट्रैक्टेड टू ज्वाइन द इंडस्ट्री। अब कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी बिजनेस शुरू करिए ना, आप दिखाइए कि उस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, आप प्रॉफिट बना के दिखाइए, आपको देख के बहुत सारे नए फर्म्स अट्रैक्ट होके इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेंगे एंड देयर बाय मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाएगा। So when the price increases, new firms join the industry, expanding, increasing the market supply for the product, and therefore the quantity supplied in the market also increases. I hope that is clear. And वहीं अगर prices reduce होते हैं किसी firm के, तो बहुत सारे producers quit करना शुरू कर देते हैं due to low profit margin, and as a result of which quantity supplied decreases. ठीक है, चलिए talking about the next topic, that is टाइम पीरियड एंड सप्लाई। नाउ कितना सप्लाई हो सकता है वो एसोसिएटेड है समय के अनुसार भी, कितना टाइम अवेलेबल है प्रोडक्शन को एडजस्ट करने के लिए। टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड, ओवर हियर वी आर कंसिडरिंग 3 टाइम पीरियड्स। One is your very short run, which is also regarded as market period. Another is your short run या short period, and third one is your long run or long period. नाउ मार्केट पीरियड जो है वो जनरली एसोसिएटेड होते हैं आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ। तो मार्केट पीरियड में ऐसा होता है दैट पोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन जो भी क्रॉप्स या जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं, उसका नो मैटर व्हाटसोएवर द प्राइस इज, अगर मान लीजिए कि आपका राइस का हार्वेस्टिंग हो गया एंड वो मार्केट में आ गया एंड सब कुछ बिक गया है, कंज्यूमर्स बोल रहे हैं कि हम लोग ज्यादा दाम देने को तैयार है, हमें और राइस का रिक्वायरमेंट है, और राइस चाहिए। नाउ आप खुद ही सोचिए कि उस सीजन में जो कि पोस्ट हार्वेस्टिंग हो गया है, क्या राइस का सप्लाई इंक्रीज करना पॉसिबल होगा शॉर्ट नोटिस में? द आंसर इज नहीं। सो मार्केट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स एब्सोल्युटली फिक्स्ड। You cannot increase your quantity supplied because the time that is given to adjust the supply is very less. बोल के no matter whatsoever the price is, your quantity supplied does not change at all. That is market period. ठीक है, टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन। शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड होता है कि अगेन यहां पे भी टाइम लिमिटेड ही होता है, बट देन इट स्टिल अलाउज यू टू चेंज योर वेरिएबल फैक्टर्स लाइक योर लेबर। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी अगर बात करें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, एंड कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, दैट इज सम फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड। So short run just allows you to make changes with the variable factor, that is say for example your labor। कि मान लीजिए अगर मैं कपड़ा सिलता हूं, ठीक है, एंड मैं एक दिन में 5 कपड़ा सिल लेता हूं, एंड मेरे पास एक कस्टमर आता है एंड ऑर्डर देता है कि मुझे 50 यूनिट का ऑर्डर देना है, बट आपको मेरे को वो ऑर्डर 5 दिन के अंदर में देना पड़ेगा। सो 5 यूनिट इज माई कैपेसिटी पर डे, 5 दिन के हिसाब से तो मैं 25 यूनिट सिल पाऊंगा, एंड 5 दिन इतना कम टाइम समय है कि मैं अभी एडिशनल मशीन भी नहीं ला सकता हूं, ना ही अपने शॉप के साइज को इंक्रीज करके अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं। तो मैं 5 दिन में क्या करूं ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए? 5 दिन के अंदर अंदर मैं खाली यही कर सकता हूं कि जहां मैं 8 घंटे काम करके 5 कपड़ा सिलाई करता हूं, वहीं शायद मैं खुद को 12 घंटे या 14 आवर्स स्ट्रेच करके आई ट्राई टू इंक्रीज माई quantity supplied. But then however even I am not a machine, I am a human. So
8 घंटे एफिशिएंटली काम करके 5 यूनिट सिलने के बाद अगर मैं खुद को 12 घंटे या 14 घंटे स्ट्रेच भी कर लूं, स्टिल आई विल जस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस से एडिशनल 2 more units, 2 more clothes। तो वहां पे भी सप्लाई जो है तो 35 ही हो पा रहा है 5 दिन के हिसाब से। तो वहां पे भी जो सप्लाई है बढ़ तो रहा है, बट एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही बढ़ पा रहा है, क्योंकि टाइम अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कम दिया गया है। रादर शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करके आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है। कुछ फैक्टर्स शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है। सो क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स अ लिटिल लिमिटेड इन द शॉर्ट रन एज वेल। इट कैन बी इंक्रीज बट नॉट टू मीट द एंटायर डिमांड ऑफ द मार्केट। वहीं टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन टाइम पीरियड, लॉन्ग रन टाइम पीरियड आपको इतना टाइम अवेलेबल देता है, एडजस्ट करने के लिए देता है कि आप अपनी क्वांटिटी सप्लाई को किसी भी एक्सटेंट तक चेंज कर सकते हो। सेम एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर मैं 5 कपड़ा सिल सकता हूं एक दिन में, अगेन मेरे को 50 यूनिट्स का ऑर्डर आता है, लेकिन टाइम पीरियड बोला जाता है कि आप 6 महीने के अंदर दे दीजिएगा। तो 6 महीना इज लॉन्ग इनफ फॉर मी कि मैं एडिशनल 2 और मशीन भी ले आऊंगा, साथ ही साथ 2 और वर्कर्स भी हायर कर लूंगा, एंड साथ ही साथ मेरा मे बी शॉप का साइज भी इंक्रीज कर दूंगा। सो लॉन्ग रन अलाउज मी टू मेक चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। I can upscale my production. I can increase the production capacity of my product in the long run time period. बोल की सप्लाई को बहुत ग्रेटर एक्सटेंट से इंक्रीज किया जा सकता है। सो इनके डायग्राम्स कैसे बनेंगे, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। स्टार्टिंग विथ योर मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड में मैंने बोला कि सप्लाई रिमेन्स एब्सोल्युटली फिक्स्ड, एब्सोल्युटली कांस्टेंट, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। चाहे प्राइस बढ़े या घटे, सप्लाई चेंज नहीं होगा मार्केट पीरियड में। सो वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस क्वांटिटी, प्राइस। वी स्टार्ट विद द इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी P0 Q0। मैंने कहा कि प्राइस अगर इंक्रीज भी हो तो भी क्वांटिटी सप्लाइड फिक्स्ड रहेगा, P1 पे भी स्टिल क्वांटिटीज Q0, एंड प्राइस अगर डिक्रीज भी हो तो भी क्वांटिटी सप्लाइड सेम ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स ये हो गया मेरा लोकस, ये हो गया और ये वाला हो गया। इन तीनों लोकस को अगर ज्वाइन करें तो वील गेट अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। एंड इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी अगर बात करें, this is going to be your perfectly inelastic supply। जैसे perfectly inelastic डिमांड किया था, वैसे perfectly inelastic सप्लाई हो जाएगा कि सप्लाई इज absolutely fixed in the market period। So this is supply curve for MP for market period। ठीक है। Now talking about short run, talking about short run, मैंने बोला कि आप सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो शॉर्ट रन में, बट देन लिमिटेड एक्सटेंट तक ही, लिमिटेड क्वांटिटी तक ही। चाहे फिर प्राइस बहुत ज्यादा भी क्यों ना इंक्रीज हो जाए, मतलब प्राइस का चेंज अगर बहुत ज्यादा भी हो शॉर्ट रन में, कि मान लीजिए मेरा कस्टमर मेरे को बोलता है कि 5 दिन में 50 कपड़े सिल के दे देना, मैं आपको डबल द प्राइस दूंगा जो भी आप चार्ज करते हो। तो इवन अगर शॉर्ट रन में प्राइसेस बहुत ग्रेटर एक्सटेंट से इंक्रीज कर भी रहा है तो भी सप्लाई को बहुत ज्यादा मीट नहीं किया जा पाएगा। ठीक है। सो ओवर योर सप्लाई कर्व विल बी लाइक y axis origin, x axis quantity, प्राइस। आप इनिशियल ले लीजिए, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी P0 Q0। शॉर्ट रन में अगर प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो जाए तो भी क्वांटिटी को सिर्फ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही इंक्रीज किया जा सकता है। कैन यू सी द चेंज इन प्राइस विच इज ग्रेटर एंड चेंज इन सप्लाई डेल्टा एस विच इज लेस। इन अदर वर्ड्स इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको इस टाइप का सप्लाई कर्व मिलेगा, एंड इसको एक्सटेंड करने से आपको पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस को आके इंटरसेप्ट कर जाता है। इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी अगर बात करें, जहां हमने डिमांड में भी किया था कि अगर क्वांटिटी का रिस्पॉन्स प्राइस के रिस्पॉन्स से कम है तो इट बिकम्स रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो ये भी होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, कि जहां क्वांटिटी कम प्रपोर्शन से चेंज हो रहा है,
इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस इन शॉर्ट रन, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है प्रोडक्शन को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के लिए मैंने आपको क्या बोला कि सप्लाई को आप इंक्रीज कर सकते हो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक आप लॉन्ग रन में सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना टाइम अवेलेबल है। सो अगर लॉन्ग रन में प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज होने का है, सप्लाई को बहुत ज्यादा ग्रेटर प्रपोर्शन से इंक्रीज किया जा पाएगा इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आप लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स को एडजस्ट करके, बी इट ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल, आप क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपैंड कर पाओगे, ठीक है। सो लॉन्ग रन के लिए इट वुड बी लाइक वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस your quantity, your price over here. We start from the initial price, initial quantity, P0 Q0. लॉन्ग रन में अगर थोड़ा सा भी प्राइस ज्यादा होने का चांसेस है तो आप अपना क्वांटिटी सप्लाइड को ग्रेटर प्रपोर्शन से इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। तो इसको अगर ज्वाइन करें तो हमें सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगा, एंड इसको अगर एक्सटेंड कर दे तो देखेंगे कि ये वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, एंड रादर आप देख रहे हो कि चेंज इन प्राइस थोड़ा सा है और चेंज इन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। सो बोल के इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी इट विल बिकम रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। इट विल बिकम रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, दैट क्वांटिटी को ग्रेटर प्रपोर्शन से चेंज किया जा सकता है। आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डोंट वरी, अगर आपको रिलेटिवली इलास्टिक इनइलास्टिक अभी भी समझ नहीं आया है तो आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होने तक का वेट करिए। जैसे इलास्टिसिटी कंप्लीट होगा आप वापस से ये टाइम पीरियड वाला पार्ट को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो टाइम पीरियड मैंने बता दिया आपको कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होगा मार्केट पीरियड में, बिकॉज टाइम फ्रेम यहाँ पे सिर्फ फ्यू आवर्स और डेज ही एडजस्ट करने के लिए, तो सप्लाई इज एब्सोल्युटली फिक्स्ड बिकॉज प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल, वंस फार्मर ब्रिंग्स फ्रेश वेजिटेबल टू द मार्केट, दे कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई नो मैटर how high the price is. Even if demand increases, price rises, but supply stays the same. So market period में it will be vertical, that is perfectly inelastic supply, ठीक है। शॉर्ट रन में a few weeks और month दिया जाता है, producers can adjust the supply only partially, only up to a limited extent by increasing their working hours or hiring temporary workers. However, they cannot expand production capacity very significantly, like in a larger proportion. Like for example, a car company can increase production by extending the working hours, but cannot build a new factory overnight, and therefore यहाँ पे relatively inelastic supply रहता है। But long run में आपको several months और several years तक का time frame मिलता है, बोल के firms can expand production fully, completely, नया factory लगा के, नया machine लगा के, या by hiring and training more workers को। So supply responds very significantly to price changes. For example, if laptop का price increases, company can build more factories to increase the supply over time. So long run supply का will be more elastic than short run. तो ये हो गया आपका market period का supply, ये हो गया आपका शॉर्ट रन का सप्लाई, जहां पे क्वांटिटी का सप्लाई बहुत कम है प्राइस के रिस्पॉन्स में, एंड लॉन्ग रन में आप देखोगे कि क्वांटिटी का चेंज बहुत ज्यादा है प्राइस के मुकाबले, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, एंड आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज आप ऐप से जरूर इसको परचेज कर लो जल्दी से जल्दी, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, you all should be having this handy. Now some students were asking me कि हम लोग इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे। See, I can't give you the access to download the notes, आप उसको लैपटॉप पे बैठ के आराम से एक्सेस कर लो क्लास प्लस में, बट डाउनलोडिंग का ऑप्शन मत मांगिए, क्योंकि क्या होता है कि यहां से नोट्स डाउनलोड करके बच्चे लोग फिर इधर उधर टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियस सा बात है ना, हमें भी अपना ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना है, सो वी डोंट वांट एवरीथिंग टू बी जस्ट स्प्रेडिंग आउट freely for everybody. Rather, if you are paying for this, you should be the one who's benefiting from it. So please purchase it. ऐप पे जाके उसको नोट्स को पढ़ा कीजिए, या फिर लैपटॉप पे बैठ के आराम से जब भी कोई चैप्टर को पढ़ना है आप लैपटॉप खोल के उसको पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्शंस टू द सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ एक्सेप्शन में सिर्फ दो ही सप्लाई कर्व हमें कवर अप करने हैं, वन इज योर वर्टिकल सप्लाई कर्व एंड अदर इज योर लेबर सप्लाई कर्व, which is also known by backward bending supply curve of a labor. Now vertical supply curve क्या है, यही वाला है आपका vertical supply market period वाला।
सो वर्टिकल सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट आपके मार्केट पीरियड पे भी लगता है, फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी लगता है, इवन फॉर रेयर गुड्स भी लगता है। वो गुड्स जिसका सप्लाई को हम लोग इंक्रीज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो रेयर है, वो अपने लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि चलिए मैं आपको मुंह मांगा रकम दूंगा, आप मेरे को दूसरा कोहिनूर हीरा लाके दे दो, इज इट पॉसिबल कि आप इंक्रीज कर पाओगे? या आप मेरे को दूसरा मोनालिसा का पेंटिंग लाके दे दीजिए, या आप मेरे को दूसरा ताजमहल बना दीजिए, या आप मेरे को क्वीन एलिजाबेथ का दूसरा क्राउन दे दीजिए। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द सप्लाई फॉर रेयर प्रोडक्ट्स? यू विल से नो। सेम गोज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ओवरनाइट एक रात के अंदर में क्रॉप्स को उगा के मार्केट सप्लाई इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। So vertical supply would imply that supply is absolutely fixed in its quantity. Some quantity have fixed supply, meaning that their quantity cannot increase or decrease no matter what the price is, whether the price is high or low. For example, in case of rare goods, land in case of specific location like classical paintings हो गए मोनालिसा का, या एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, या रेयर कॉइन्स हो गए, या विंटेज ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प्स हो गए, इनका सप्लाई को और नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड इन अ सिटी इज फिक्स्ड नो मैटर हाउ हाई द प्रॉपर्टी प्राइसेस आर। ठीक है, सो इसीलिए वर्टिकल सप्लाई कर्व का रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसा, दिस इज योर वर्टिकल सप्लाई कर्व। That is, no matter whatsoever the price is, quantity supply remains absolutely fixed. And talking about labor supply curve, कुछ ऐसा दिखता है आपका backward bending supply curve of a labor। आइए इसको डिकोड करते हैं। लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है। नाउ लेबर का सप्लाई किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं प्राइस का बात करूं फॉर लेबर, प्राइस विल बी योर वेजेस। लेबर को जो वेजेस हम लोग पे करेंगे वही उसका प्राइसेस होगा। एंड अगर इसका क्वांटिटी सप्लाइड का बात करूं तो लेबर क्या सप्लाई देता है? आवर्स, कितने घंटे लेबर काम करने को तैयार है, दैट इज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। तो मान लीजिए अगर मैं लेबर को दे रहा था से एट ₹150 पर डे एंड उससे 8 घंटे काम कराता हूं, और मैं उसको ऑफर करता हूं कि चलो मैं तुम्हें दूंगा ₹250 पर डे, बदले में तुम 12 घंटे काम करो मेरे लिए, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करो, मैं तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। क्या लेबर अग्री करेगा ये काम करने के लिए? आप बोलोगे यस, लेबर करेगा, क्योंकि लेबर क्लास पीपल बहुत पुअर पीपल होते हैं एंड उनको अगर ऑफर किया जाए कि आपको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा, उसके बदले में आप थोड़ा ज्यादा काम कर दो मेरे लिए, तो वो लोग शायद मान जाएंगे, बिकॉज दे लुक आफ्टर अर्निंग मोर इनिशियली। So that is why when they are offered higher wages, they would agree to work for a longer duration. They would agree to work for a longer duration. In other words, in terms of wages and leisure, leisure, L-E-I-S-U-R-E, leisure का मतलब होता है आराम का समय। So in terms of wages and leisure, उनको अगर पूछा जाए आप क्या प्रेफर कर रहे हो, तो वो लोग बोलेगा that we would prefer, they would prefer wage to leisure। नाउ प्रेफरेंस के साथ ओवर का इस्तेमाल मत करिएगा, प्रेफरेंस के साथ टू लगता है, आई प्रेफर टी टू कॉफी, सो दे वुड प्रेफर वेज टू लीजर। ठीक है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अर्निंग हायर इनकम। बट सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस अगर मैं बोलता हूं कि चलो आई ऑफर यू ₹350, बट बदले में यू हैव टू वर्क 16 आवर्स फॉर मी, अब लेबर क्या बोलेगा? लेबर बोलेगा आई एम नॉट अ मशीन, मैं इतना देरी काम नहीं कर सकता हूं, इवन मुझे भी रेस्ट का जरूरत है। देयरफॉर इवन हायर वेजेस में भी लेबर वुड डिनाई, क्योंकि शायद लेबर ने सफिशिएंट इनकम ऑलरेडी कमा लिया है जितना उनको कमाने का है। सो इन दैट केस लेबर वुड प्रेफर सेकेंड टाइम बाय डिनाइंग, दे वुड डिनाई दिस। ठीक है, दे वुड डिनाई दिस, इन अदर वर्ड्स दे वुड प्रेफर leisure to wage, they would prefer leisure to wage। तो यहां क्या हो रहा है कि इनिशियली वेजेस बढ़ने से सप्लाई बढ़ाया जा रहा है, बट इवेंचुअली विद अ फर्दर राइज इन मोर वेजेस सप्लाई को कम कर दिया जा रहा है। तो इसको अगर ग्राफिकली हम लोग प्लॉट करें
if we graphically plot this concept, y axis origin, x axis, यहां मैं लिखता हूं hours, in other words your quantity supplied, and यहां मैं लिखता हूं wages, in other words your prices. So अगर मैं स्टार्ट करूं इनिशियल वेज के साथ W0 एंड इनिशियल आवर के साथ H0, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं, यहां मिलेगा अपना फर्स्ट लोकस। अगर लेबर को ऑफर किया जाए हायर वेजेस और बोला जाए कि आप ज्यादा देरी काम कर लो H1, तो शायद लेबर अग्री कर जाएगा। इन अदर वर्ड्स, एट अ हायर वेजेस लेबर वुड अग्री टू वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो मेरा सप्लाई किधर जा रहा है, यूल गेट टू सी दैट अपना सप्लाई ऐसे इंक्रीज हो रहा है। बट विद अ फर्दर राइज इन वेज W2, उनको अगर बोला जाए कि और ज्यादा देर के लिए काम करो, तो वो डिनाई करके कम कर देगा अपना काम को, रिड्यूस कर देगा। इन अदर वर्ड्स सप्लाई क्या हो रहा है, H2 देखो कम हो जा रहा है। सो ये जो अपना सप्लाई कर्व है, ये यहां से ऐसे पीछे तरफ मुड़ जाएगा, पीछे चला जाएगा, इट गोज बिहाइंड, and that is why this kind of curve is called a backward bending supply curve of a labor. ठीक है, this is regarded as backward bending supply curve of a labor, where पॉइंट ए से बी के बीच में अगर पूछा जाए तो यहां पे लेबरर्स आर प्रेफरिंग वेज टू लीजर, बट बी से अगर आप सी ले लीजिए, यहां पे लेबरर्स आर प्रेफरिंग लीजर टू वेज, ठीक है, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड दैट गिव्स अस आवर बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ अ लेबर। आई होप दैट दिस इज क्लियर, ठीक है। For some factors, production, especially labor, the supply curve may bend backward after a certain point of time. When wages increases, workers supply more labor because they prefer wages to leisure. However, if the wages rise too much, workers may feel that they earn enough, they have earned enough, and choose leisure over wage. Choice के साथ, since I'm an English teacher, तो मुझे बताना तो पड़ेगा, choices के साथ they choose this over that, but prefer के साथ they prefer this to that. So please correct your preposition as well. ठीक है? And here we finish our labor supply curve. चलिए, moving to the last part. Now movement changes in supply. Changes in supply, जैसे हमने डिमांड में किया था चेंजेस, वैसे ही सप्लाई का भी होगा चेंजेस। दो टाइप का चेंज देखने मिल सकता है हमें सप्लाई में भी, या तो मूवमेंट होगा या तो फिर शिफ्ट होगा, ठीक है। जहां मूवमेंट को हम लोग बोल सकते हैं, मूवमेंट का नाम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। प्लीज रिमेंबर के दिस कीवर्ड क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं शिफ्ट के लिए उसको हम लोग बुलाते हैं चेंज इन सप्लाई, यहां क्वांटिटी नहीं रहेगा, यानी कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड अलग है, इंक्रीज इन सप्लाई अलग है। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज अबाउट मूवमेंट, इंक्रीज इन सप्लाई इज अबाउट शिफ्ट। डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज अबाउट मूवमेंट, डिक्रीज इन सप्लाई इज अबाउट शिफ्ट, ठीक है। मूवमेंट का भी बात करें तो मूवमेंट बेसिकली होता है along the same supply curve, मूवमेंट होता है सेम सप्लाई कर्व में, एंड शिफ्ट की वजह से फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स अ न्यू सप्लाई कर्व, ठीक है। शिफ्ट की वजह से नया सप्लाई कर्व फॉर्म होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, व्हाई डज मूवमेंट हैपन? मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू change in price, very important, जहां पे while
other factors remains constant. Other factor does not change. So movement happens due to changes in price and other factors does not change. वहीं if I talk about shift क्यों होता है? Shift happens due to other factors या ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर. यहां पे प्राइस डज नॉट चेंज. ठीक है, यहां प्राइस चेंज नहीं होता है. ठीक है, यहां प्राइस चेंज नहीं होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट मूवमेंट. मूवमेंट कितने टाइप से हो सकता है? दो टाइप से. या तो एक्सपेंशन इन सप्लाई या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. शिफ्ट भी दो टाइप से हो सकता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ठीक है, राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट. नाउ एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द हिंदी मीनिंग फॉर एक्सपेंशन? एक्सपेंशन मतलब बढ़ना. कौन बढ़ेगा? आपका सप्लाई बढ़ेगा. एंड एज पर लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि मूवमेंट प्राइस की वजह से हो रहा है, प्राइस इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ सप्लाई. सो सप्लाई कब इंक्रीज करता है? व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस, अज्यूमिंग दैट अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स डू नॉट चेंज. टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना. सप्लाई कब कम होता है? व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ठीक है, तो आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा बनेगा. अब मैं आपको एक ही ग्राफ में बना के दिखा रहा हूं. ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग सेपरेट डायग्राम्स. आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने डिमांड में तो सीख लिया है, तो यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड क्वांटिटी एंड प्राइस. सबसे पहले यू स्टार्ट बाय मेकिंग योर इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी. ठीक है, P0 Q0. एक्सपेंशन हमने क्या बोला? क्या होगा एक्सपेंशन? दैट एट अ हायर प्राइस if larger quantity is supplied. ठीक है, when the price increases, quantity supplied increases. तो जो यहां से मान लीजिए ये पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, यहां से यहां तक का जो मूवमेंट होगा ए से बी तक का, वो कहलाएगा आपका एक्सपेंशन. आप रुक जाइए, मैं कर्व अभी ज्वाइन करता हूं, कॉन्ट्रैक्शन भी पहले बना दूं. एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या बोल रहे हैं हम लोग? दैट इफ योर प्राइस डिक्रीजेस, if your price decreases, your quantity supplied also decreases. So P2 से Q2, यानी मान लीजिए A से इस पॉइंट तक C, ये जो नीचे तरफ मूवमेंट आएगा ये कॉन्ट्रैक्शन होगा. This is your expansion from A to B and this is going to be your contraction. Contraction will be from A to C. ठीक है, अब सप्लाई कर्व को ज्वाइन करते हैं हम लोग. There you go. ठीक है, सप्लाई कर्व को हमने ज्वाइन कर दिया एंड SS लिख दिया. तो ये पॉइंट से लेके जो पॉइंट बी तक का मूवमेंट हो रहा है ये एक्सपेंशन है, एंड यहां से जो नीचे तरफ आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन है. Higher price, higher supply is your expansion. Lower price, lower supply is your contraction. I hope that is clear. And चलिए moving to your shift. Rightward shift को increase in supply भी बोल सकते हैं. तो supply अगर right में shift हो रहा है, मतलब x axis के right direction में जा रहा है, so it is going to be increase in supply. So rightward shift would imply that when a larger quantity is supplied, even at the same price, unchanged price, price के बिना change हुए. क्यों? क्योंकि हो सकता है शायद इनपुट प्राइसेस रिड्यूस हो गए हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है, सब्सिडीज दिया जा रहा है, नंबर ऑफ सप्लायर्स इंक्रीज हो गए हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर फेवर में आ गया है. सो अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, वो हो जाएगा आपका राइटवर्ड शिफ्ट. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड इवन एट द सेम प्राइस. दोनों का कारण क्या है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स.
ठीक है, या ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स, फैक्टर्स अदर दैन प्राइस, प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स की वजह से हो रहा है उनके वजह से शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए इनका डायग्राम भी देख लेते हैं कैसा बनेगा। अब मैं एक ही डायग्राम में बना दे रहा हूं इसको भी। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस यहां आ गया अपना क्वांटिटी, यहां आ गया अपना प्राइस। अगेन वी स्टार्ट विथ इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी P0 and Q0। फॉर इंक्रीज इन सप्लाई हम लोग क्या बोलेंगे, इवन एट अ सेम प्राइस, even at the same price a larger quantity is being supplied, so Q1, even at the same price larger quantity is being supplied। तो यहां सप्लाई कर्व कैसा निकल के आएगा, ये हो गया आपका इनिशियल सप्लाई और ये हो गया आपका इंक्रीज इन सप्लाई फ्रॉम S2 S1 S1। दी एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एरो को मार्क करिएगा दिखाने के लिए कि ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट है, इंक्रीज इन सप्लाई। एंड एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे लोग क्या करके आ जाते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी, यानी कि उनका सप्लाई ऐसा बन जाता है गलती से। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये डिमांड है, सप्लाई नहीं है, गलती ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप ऐसे है ना माउंटेन बना लिया करो। ठीक है, मेक अ माउंटेन, जहां ये जो एस्केलेशन ऊपर जाते हुए देख रहे हो ये सप्लाई है, एंड ये जो डिक्लाइन पे देख रहे हो नीचे आते हुए ये आपका डिमांड है। एक छोटा सा माउंटेन बना लिया करो, आपसे मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने गलत बना दिया तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे इसीलिए। ठीक है, एंड डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगा, इवन एट अ सेम प्राइस लोअर क्वांटिटी इज बीइंग सप्लाइड। ठीक है, सो Q2 इवन एट अ सेम प्राइस व्हेन लोअर क्वांटिटी इज बीइंग सप्लाइड, यानी कुछ इधर इस तरीके से S2 S2। सो दिस इज योर डिक्रीज इन सप्लाई, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट फ्रॉम S to S1 S1, लेफ्टवर्ड शिफ्ट फ्रॉम SS to S2 S2। and with this we come to an end of supply ka part। elasticity of supply is yet to be done, just one more video and elasticity will be covered up। so I hope you have understood supply and you are liking my content। if you are, then please show some support by liking, sharing, subscribing। keep studying, keep smiling, I'll see you in my next video, till then take care, bye bye।